is how laws are made in India. My name is Ishka. Firstly, I tell about myself. My name is Ishka. I live in Kanpur. There are 5 members in my family. My father is electrician and mother is housewife. I study class 40. My school is Sheikh Dhale KV number 2, A4 Kanpur Nagar. My hobby is dancing. I want to become DM. Good afternoon, everyone, respected chief guests, elders, and my dear friends. Today I will speak on the topic how laws are made in India. Laws are rules that keep our safe and fair. The Indian Constitution covers to make laws. Laws are made by Parliament of India. The Parliament has 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. A new law started as a bill. The bill is first discussed in one house. Members did talk and suggested changes. After both houses, it goes to the President of India. The President signed it to make it to law. Once signed, it becomes part of our legal system. They protect, help to run to country power. This laws good afternoon. My topic is Rajya Sabha study. I will about myself. Good afternoon, everyone. My name is Pushpendra Gautam. I live in Kanpur. There are 4 members in my family. My father is teacher. My mother is housewife. I study in class 4. My school name is PMC Kendrick Dayal 2 A4 Kanpur Nagar. My hobby is playing a cricket. I want to become army officer. Once again, good morning. Once again, good afternoon, everyone. Respected chief guest, elder and my dear friends. Today I will speak on the topic Rajya Sabha. Rajya Sabha is one of the 2 houses of Parliament. It is also called the Council of State and Council of State. It represents the state and union territories of India. Rajya Sabha protects the interests of every state. It has a maximum 250 members. Members are not directly elected by people. They are chosen by the state legislative assemblies. The Vice President of India or Chairman of Rajya Sabha. Rajya Sabha discusses and passes important laws. It checks and reviews and work of Lok Sabha. It helps to make better and balanced law. Member of Rajya Sabha serve for 6 years. Jai Bhim, Jai Bharat. That is all from my topic. क्रिस्टीना मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए क्रिस्टीना जी अब इसके बाद में पावनी जिन्होंने संविधान क्यों जरूरी है इस संबंध में अपने वक्तव्य रखे। पावनी जी को मुख्य अतिथि महोदय और मुख्य प्रबोधक अजय गौतम जी के कर्तव्यों से और अध्यक्ष जी साथ में भी अध्यक्ष जी भी है। ये कितना सुंदर सुहाना सा एक पल मनोहारी दृश्य हम सबको। अंजलि जी तुम तो बैठे हो बड़ा लो जिनका है ना वो हमको जानते हैं। अंजलि जी अपना पुरस्कार प्राप्त करते हुए नेहा जी जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताने का प्रयास किया। नेहा साथ ही दिशिका इसका जी आए और अपना पुरस्कार प्रमोद होना। लाल मेड इन इंडिया इन्होंने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया।
अब हमारे इस पुरस्कार की सुभाषित करते हैं, ये हमारे उज्जवल भविष्य के मार्गदर्शक हैं। हमें आपको इन्हीं के होना है। चलिए अपना स्थान ग्रहण करें। तो पुरानी बात याद दिला रहा है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, संगठन में लोग 2015 के पहले ये स्थान बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, याद है आपको? पुराने लोग होंगे, भोले जी है, ललित जी है, तो बेटा सुन रहे ये बिल्कुल ये जान पड़ा हुआ था, याद है आपको? आप सबके प्रयास से ये स्थान बना है। मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको याद होगा 2015 के पहले कानपुर में कोई भीम यात्रा नहीं निकलती थी, याद है आपको? ये जो शिवगढ़ा में होती है, हम लोग वहाँ संगठन चलाते थे और आप सबके सहयोग से ललित जी याद है, भोले जी हैं, हम सब लोग घरों में गए थे। थोड़ी लड़ाई थी कि घर से निकलो और अपने पास जो भी साधन है वो लेकर यात्रा निकालो। और लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ, आज वो बहुत विशाल रूप में यात्रा निकलती है। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपका प्रयास देखकर बहुत खुश हुआ। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा है, बस सिर्फ आपको आपके प्रयास के धन्यवाद देना है। और इन बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा है। तो सुजाता जी हमारी जो युवा साथी है मेडिकेट है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, और जो वकील साहब थे मैं उनसे एक निवेदन करने आया हूँ, भाषण नहीं दे रहा हूँ। वैसे मैं राजनीतिक परिवार का भाषण बहुत देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ भाषण नहीं दे रहा हूँ। जबकि मैं आया हूँ यहाँ मैं सुझाव देकर जाता हूँ और अब मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अमल करते हैं, इसमें खुशी हो रही है। तो मेरा ये सुझाव है, महीने में एक दिन कोई एक वकील यहाँ पर आके भारतीय संविधान के अधिकारों के बारे में, एक अधिकार के बारे में एक महीने, दूसरे अधिकार के बारे में दूसरे महीने बताए और पढ़ाए, और अगले महीने में उसी अधिकार के बारे में उनसे पूछे, जिससे उनको पूरा कंठस्थ हो जाए और वो अपने अधिकार के प्रति अवेयर हो जाए। और समाचार पत्र और जो पत्रिकाओं में निकलते हैं उनको एकों को उदाहरण देकर बताए कि संविधान कैसे, इस संविधान के अधिकार का पालन कैसे कराया जाता है। मैं प्रैक्टिकल चीज बताने की बात कर रहा हूँ आपको। तो ये जिम्मेदारी हमारे वकील साथियों के लिए, आपके लिए भी है जो यहाँ रहते हैं। मुझे मौका मिला तो मैं भी आऊँगा, मैं कम रह पाता हूँ कानपुर में, लेकिन ये आप करेंगे तो देखिए इसका परिणाम नजर आएगा। जैसे ये नजर आ रहा है परिणाम, बच्चे यहाँ, मैं इन बच्चों के अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ तो यहाँ पर बच्चे आए, वरना ज्यादातर मीटिंग में हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं, युवा पीढ़ी नहीं आती। जब तक हम युवा पीढ़ी बच्चों को नहीं लाएंगे, भारत के भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसी बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। मुझे आप सबसे बच्चों से बहुत उम्मीद है। जैसा कि हमारे अतिथि महोदय है, ये तभी संभव हो सकता है जब आप किसी की बात सुने। कहा जाता है कम बोलो ज्यादा सुनो, ये है प्रकृति विवेक, कान दिया तो इसने जुबा दी है। जो सुनने का हौसला रखता है वही अच्छा से अच्छा बोल सकता है। इसलिए बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि आप यहाँ पर आए हैं तो श्रवण करें और कुछ सीखें। एक सूचना प्राप्त हुई है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी हॉस्पिटल की ओपनिंग दोपहर 2:30 पर रामा देवी चौराहा, मंगला। जय भीम, जय 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 भीम। आप सुनिए, कहते हैं अंधेरा ढक ले सूरज को, यदि अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या, लगी हो सेठ दीवारों पर, लगी हो सेठ दीवारों पर तो तालों की खता क्या। एक दीवार का हिस्सा खुला हो, ताला बाहर से लगा दो तो आपके ताले लगने का क्या मतलब। तो मैं कहना चाहूंगा, अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या, लगी हो सेठ दीवारों पर ताले की खता क्या। कोई इतना खूबसूरत हो कि नशे में डूब जाए आंखें, कोई इतना खूबसूरत हो कि नशे में डूब जाए आंखें और टूट जाए प्याला, नशे में शराब और हो जाए आंखें
तो टूट जाए प्याला तो प्याले की कथा क्या। अर्थात इतने खूबसूरत हमारे संविधान में यदि हम लोगों को देखने का भी ढक दिया जाए, अधेरा कर दिया जाए और ये मौका न मिले तो उसमें संविधान की क्या कथा है। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ताला लगा दिया गया उसमें और हमें आपको पढ़ने जाने की अनुमति नहीं दी गई, समझने की अनुमति नहीं दी गई, तो उसकी कथा नहीं है। कथा हमारी आपकी है या हम लोगों की है जो वहां तक पहुंचे नहीं, पहुंचाए नहीं। चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परम आदरणीय एडवोकेट अजय गौतम जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि उनके बुलाने के बाद भी मैंने उनसे समय मांगा, उन्होंने मुझे समय दिया, इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आज इस कार्यक्रम के मुख्य प्रबंधककार हैं एडवोकेट अजय गौतम साहब। एक हिस्सा तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जोरदार तालियों से स्वागत अजय जी, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती है ये हमारी कमेटी और हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपको सुभाषित करते हैं निरंतर। आप सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, साथियों हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय भी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिन संघर्षों से शिक्षा हासिल की और आज देश के कोने कोने में जितने भी प्रशासनिक और न्यायिक ऑफिस हैं वहां बाबा साहब की पूजा होती है, वहां तक पहुंचे। साथियों, मैं सबसे पहले इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने उस समाज के मुंह पर ताना देते हुए, तमाचा मारते हुए आज अंग्रेजी बोलने तक में महारत हासिल की है। और इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए उनके माँ बाप, उनके गार्जियन की वो कम है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित होंगे तभी हम संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। साथियों, हम शिक्षित तो हो गए लेकिन संगठित होने में अभी कमी है। हमें संगठित होना चाहिए और अपने, देखिए हम लोग उस समाज से हैं जहां हम लोग मजदूरी करते रहे, लेकिन अब अधिकार आया है कि हम व्यापार पर हावी हो और देश की व्यवस्था संभालें और आगे बढ़ें। जब तक हमारे साथी छोटे छोटे व्यापार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही व्यवस्था को आगे करना है। और अपने लोगों से ये गुजारिश करना है कि उनके व्यवसाय में हम उनका सहयोग करें और देश में भागीदार बने। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये बाबा साहब का जो दिखाया हुआ सपना है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये समाज में मनवादी विचारधारा के लोग हमें भ्रमित करने का काम करते हैं। आज राम राज्य की बात करते हैं। साथियों, हमें राम राज्य नहीं चाहिए। राम राज्य में हमें बैठने, बात करने और इनके बताए हुए निर्देशों पर चलने का काम था। और इनके पिछलग्गू रहते थे, इनको छूने तक का अधिकार नहीं था। जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, हम उनके बराबरी के हिस्सेदार हुए। इसलिए हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें अम्बेडकर राज्य चाहिए और अम्बेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर हमको चलना चाहिए। साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ बाबा साहब के इस कार्यक्रम को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए उन आयोजकों का, जिन्होंने इन बच्चों को पुरस्कृत करके और उन्हें प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के उनके मनोयोग को बढ़ाने का काम किया है। आप लोग पढ़ें और बढ़ें, आपके गार्जियन आपका बढ़िया सहयोग करें, देश के हिस्सेदारी में भागीदारी करें, समाज को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।
अपने रिश्तेदारों से अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, समाज के लिए, उन लोगों के लिए एक संदेशा है जिसके लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं कि बेटे का मोह है, बेटी का मोह है, धन का मोह है, वैभव का मोह है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी आपकी होगा, न बेटा रहने वाला है न बेटी। उनके लिए है जो इस समाज में अपने आप को समाज से पृथक रखते हैं, समाज में अपने रोजगारों को, अपने धन को, अपने समय को नहीं देते हैं। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले तू कब्र में लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले तू कब्र में लेटा रहेगा। अब छूटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, छूटेगी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत। और क्या होगा कि नशे में छूटेगी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत कि तू 2 गज कफन में लपेटा रहेगा, तू 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। साथियों, अंत में आपके पास कुछ जाने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 गज कपड़ा आपके घर के लोग आपको दे पाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए समाज के लिए कुछ करना हमारा आपका फर्ज बनता है और हमें समाज के लिए जीना चाहिए। हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने घर परिवार छोड़कर समाज के लिए ही सब कुछ किया है। विवाह आराध्या सहमित्र बड़े भाई सुरेंद्र जी कवाकर जी भी मंच पे आए और पुरस्कार वितरण में अपना सहयोग सूर्य कुमार आयुष जी आए, साक्षी गौतम क्रिस्टीना, पुष्पेंद्र, कौशल जी से निवेदन है कि वो मंच पे आए और बच्चों के पुरस्कार वितरण में अपना योगदान दें। आगे गौतम जी और भी अतिथि है, वो लोग आज के बीच में बहुत दूर से अपना समय निकाल के आए हुए उसके पास चलिए बहुत धन्यवाद के साथ ये राष्ट्रीय और महासभा के मोमेंट बहुत तेजी से चलता है। मैं करण जी का स्वागत करते हुए सुरेंद्र सिंह कवाकर जी, आप सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बच्चों की तालियों की गूंज ने हाल को सराबोर कर दिया। कोने से लेकर उस कोने तक अपना शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सहयोग देते रहते हैं। ऐसे महानुभावों को ये हमारी कमेटी बहुत बहुत साधुवाद करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। जोरदार तालियों से स्वागत। इस सम्मान की श्रृंखला में हमारे बीच में नरेंद्र पाल आ चुके हैं, नरेंद्र पाल जी, और जोरदार तालियों से स्वागत आप सभी लोगों का। ये कमेटी पूरी प्रशंसा करते हुए आप सबको हिंदू राष्ट्र से बचना है तो इलेक्शन में अपने वोट को न बेचें, और अगर ये सत्ता में है तो आपको देखिए कितना अच्छा संदेश देते हुए हमारे नरेंद्र पाल साहब कि हमें अपने यहाँ तक पहुँचा दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।
सूरत मास्टर के कमलों द्वारा स्वागत करना चाहती है परम श्रद्धेय जिया आजम। बाकी नन्हे मुन्ने बच्चों से निवेदन है कि अभी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, सभी को सर्टिफिकेट। रौनक कनौजिया जी मंच के समीप आए और कमेटी उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर उनको पाकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। दिव्यांशी गौतम आप मन्नत गौतम मंच के समीप आ जाए। मन्नत गौतम यस राज आर्यन वर्मा नित्या भारती नेत्रा भारती पलक श्रीवास्तव कार्तिक वर्मा अनमोल अहलवाल अनमोल तालियां बजाते रहिए आप लोग। अनमोल अहलवाल शमर शमर दीपाली जी तैयार है। दीपाली दीपाली जी अनुज साकिया तैयार है। अनुज साकिया नमन नवन फरार नवन फरार कृष्णा सिंह ऋषिका सिंह ऋषिका सिंह प्रियम गौतम हर्ष विश्वकर्मा हर्ष विश्वकर्मा यश दिवाकर ऋषिका पावनी सिंह सम्मान देना चाहते हैं। रोटी का श्रोतागण एवं महिलाएं एवं बच्चों, जैसा कि आज संविधान दिवस के अवसर पर ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अच्छी खासी संख्या में बच्चों ने भाग लिया हुआ है, तो इसमें एक सराहनीय कदम है। आगे भी इसी तरह से भाग लेते रहे और पुरस्कार भी देते रहे। लक्ष्मी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका है।
30 नवंबर 2025 को फाउंडर मिस्टर पिंटू सिंह और डायरेक्टर मिस्टर मनोज यादव ने इसे जनता के लिए खोल दिया। स्वास्थ्य, सेवा और तकनीक का संगम आपके शहर में। आदर्श इलाज, अपनों का प्यार। 24/7 इमरजेंसी, आईसीयू, लैप्रोस्कोपी, फिजियोथेरेपी। अनुभवी डॉक्टर, नर्सें और स्टाफ, सिर्फ मरीज नहीं, परिवार। फैसिलिटीज, डायग्नोस्टिक लैब, डिजिटल एक्सरे, सर्जरी थिएटर। मातृत्व, बच्चों, जनरल मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड केयर। फाउंडर का संदेश, मिस्टर पिंटू सिंह, स्वास्थ्य ही धन है। हम हर दर्द को कम करेंगे, हर सपने को बढ़ाएंगे। डायरेक्टर का वादा, मिस्टर मनोज यादव, नए हॉस्पिटल, नई उम्मीद। सेवा में कोई कमी नहीं। लक्ष्मी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका है। 30 नवंबर 2025 को फाउंडर मिस्टर पिंटू सिंह और डायरेक्टर मिस्टर मनोज यादव ने इसे जनता के लिए खोल दिया। स्वास्थ्य, सेवा और तकनीक का संगम आपके शहर में। आदर्श इलाज, अपनों का प्यार। 24/7 इमरजेंसी, आईसीयू, लैप्रोस्कोपी, फिजियोथेरेपी। अनुभवी डॉक्टर, नर्सें और स्टाफ, सिर्फ मरीज नहीं, परिवार। फैसिलिटीज, डायग्नोस्टिक लैब, डिजिटल एक्सरे, सर्जरी थिएटर। मातृत्व, बच्चों, जनरल मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड केयर। फाउंडर का संदेश, मिस्टर पिंटू सिंह, स्वास्थ्य ही धन है। हम हर दर्द को कम करेंगे, हर सपने को बढ़ाएंगे। डायरेक्टर का वादा, मिस्टर मनोज यादव, नए हॉस्पिटल, नई उम्मीद। सेवा में कोई कमी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एस.जी. वर्मा है। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और आज मैं इस हॉस्पिटल लक्ष्मी हॉस्पिटल रामा देवी की ओपनिंग में आया हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर हॉस्पिटल की विजिट किया तो ये देखने के बाद ये देखा कि ये हॉस्पिटल पूरी तरह से सुसज्जित, पूरा संसाधनों से सुसज्जित और एक अच्छा हॉस्पिटल है। और साथ ही साथ ये हॉस्पिटल ऐसा बनाया गया है, या यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे बात हुई है हमारी, तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये हॉस्पिटल हमने उन निर्धन या गरीब जनता के लिए बनाया है जो बहुत सारी चीज़ें या बहुत महंगे इलाज की वजह से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये हॉस्पिटल जो है एक अच्छा हॉस्पिटल होगा और निर्धन गरीब लोगों के लिए, और उसके लिए एक कदम की तरह काम करेगा। अच्छा, ये लक्ष्मी हॉस्पिटल जो जीटी रोड, रामा देवी चौराहा, कानपुर नगर में स्थित है और यहाँ पर सारी सुविधाएं, सारा सब कुछ है। और हम चाहेंगे कि जो भी गरीब निर्धन वगैरह हैं यहाँ पर जो है अपना इलाज कराएं और ताकि उनको सुख सुविधाएं अच्छी और ठीक हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर M.K. अंसारी, स्किन रोग विशेषज्ञ। मैं आज यहाँ लक्ष्मी हॉस्पिटल के उद्घाटन में उपस्थित रहा। यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। यहाँ क्षेत्र के लोगों को उचित उपचार के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ सबको इसके लिए बधाई हो। मेरा नाम अजय वर्मा है और आज दिन रविवार 30 नवंबर 2025 को रामा देवी चौराहे के दक्षिण क्षेत्र में एक हॉस्पिटल खुला है, लक्ष्मी हॉस्पिटल, जो कि हमारे छोटे भाई पिंटू सिंह गौतम, डॉक्टर योगेंद्र, अंबेडकर स्वास्थ्य सेवा समिति के नाम से पहले से जो रजिस्टर्ड है उनके द्वारा जो चलाया जा रहा है। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं और समस्त क्षेत्रवासियों को इस हॉस्पिटल से ढेर सारा लाभ, जो कि दूसरे अन्य हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो शोषण होता है आर्थिक मानसिक, उससे निजात दिलाने के लिए, ठीक है, इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। और यह मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे जाए ये हॉस्पिटल, बहुत आगे बढ़े। मेरा नाम योगेंद्र गौतम है और ये लक्ष्मी हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि हमारे पूर्व CMO सर डॉक्टर लीला प्रसाद सर जी के हाथों द्वारा और हमारे पूज्य पिताजी के हाथों द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे एक विचार से इस हॉस्पिटल को खोला गया है कि गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए कम से कम रुपए में एक अच्छा इलाज मिले। इसी विचार से ये अस्पताल खोला गया है। पता इसका रामा देवी चौराहा,
रामादेवी चौराहा कानपुर नगर। लक्ष्मी हॉस्पिटल रामादेवी चौराहा पर खुला हुआ है।